Temple to be constructed at Ayodhya and be able to support in its construction in every way that we can. As you've just seen in the video, this has come with a lot of hard work and a lot of balidan of a lot of people. There have been various battles. I just noticed the number 76 battles fought so that we could get this temple. And we're all fortunate to be here, to be able to be part of this construction. We have not been part of, we can't go and say we've been part of this construction of some Meenakshi temple or some other temple. But it's a proud moment for us that we can say that we are part of this temple that is being constructed at Ayodhya. I would now like to welcome Subir Ji. Subir Ji was born in Hebri village at Udupi district of Karnataka. He has been a Swayam Sevak since childhood. Subir Ji completed his BTech in 1985 and from then on has been a Pracharak from Mangaluru. He was the South Karnataka Pracharaka till 2018 and after that he took on the role as the South Central Area Sah Pracharak. From 2020 onwards he has been the South Central Pracharak which is headquartered at Bhagyanagar. Please come on to the stage, Subir Ji. I would also like to welcome Ramurthy Ji. He's a software engineer whom a lot of us know and he currently works at Genpact as a vice president. He is the state secretary for Seva Bharati and has been associated with Sangh for a very long time. Please welcome. Next, I would like to welcome Shampal Reddy Ji. Who is a software and serial entrepreneur in software and has been supporting various Seva Bharati initiatives for the past few decades. Please. Now I ask Ramurthy Ji to give the welcome address. Friends, dignitaries on the dais and fellow citizens, I think this event, Ramajan Bhumi Tirtha Kshetra Giri Samarpan, carries a lot of emotion amongst all of us. I think we have been waiting for this construction for decades and centuries, and it's happening in our lifetime. That's a significant thing, right? I mean, we're all happy, and if you see this movement across the country, the response has been tremendous. I've been, so one of the key guidance given by the leadership is that, the temple leadership is that it's not about getting money from the well-to-do, but it's about Jan Jagaran, reaching the bottom of the pyramid and, you know, making it a movement of people. The temple is for the people. In this part, actually, I went to my village last week, Tuesday I was there, the full day. It's a very poor village and it's got about 350-400 families, and I walked every house and the areas of the villages all of us know we don't go, right? So there is a village in India and there is we call it a palle, right? And people from the village don't go to the palle. So that's a little bit 100 meters away, stuff like that, right? That's how the social structure evolved over centuries because of various reasons. And when I went to those places, I mean, they were very eager to support. And because it's a poor village, I asked the folks to give me 10 rupee Samarpan receipts. But every hutman said, Saab, ab Ram ke liye aaya, 100 rupee minimum liko. And people gave even 500 rupees. So that's the emotion involved across the country. It bridges caste and creed and religion. And my village is a lot of Christian. It's a preserved constituency, and everyone actually participated. In fact, participated in the, they walked with me to the entire village. They thought it's something that's happening for the good of the country, good of the society, and good for themselves. So they identified themselves with Sri Ram. I think that's the message I obtained personally. It's a very emotional, emotional day. And that's happening across the country, across length and breadth of the country. And the simple target of 1,500 crores
the top target is being achieved pretty easily. Sudhirji, I was talking to him, he said we'll meet the target because the people's participation has been so tremendous. And I think we all gathered for that event here, and we're all blessed to be part of this event. And we have Sudhirji, Dakshin Madhya Kshetra Pracharak, to translate in English. He is the South Central India's administrative head of RSS. So he will give his message to all of us. And thank you again for giving your time on a Sunday morning, and we hope to make this program a big success. Thank you very much. कॉलेज के गाने ढूंढ ढूंढ के मंच पर उपस्थित राममूर्ति जी और श्यामलाल जी और इस कार्यक्रम में सभा में उपस्थित सभी गणमान्य सज्जन बंधु और माता भगिनी, सबको मेरा हार्दिक हृदयपूर्ण नमन प्रणाम। हम सब भाग्यशाली हैं क्योंकि हमारे जीवित काल में ही अयोध्या में राम जन्मभूमि पर एक भव्य राम मंदिर निर्माण होने वाला है, इसलिए हम सब भाग्यशाली हैं। और इसके लिए 76 संघर्ष हुए हैं अभी तक। 4 लाख राम भक्तों ने इसके लिए बलिदान भी किए। और इंडिपेंडेंस के बाद 72 years वी हैव टू फाइट इन द कोर्ट। 2019 नवंबर 9 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। बेंच ऑफ 5 जजेस हेडेड बाय उस समय के CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस रंजन गोगोई और वर्तमान के चीफ जस्टिस श्रीपाद अरविंद बोबड़े, जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस नजीर अहमद, बेंच ऑफ 5 जजेस वो फैसला दिया उन्होंने कि वो 14,000 स्क्वायर फुट ये जमीन और रामलला की है, रामलला का ये जमीन है। ऐसा एक ऐतिहासिक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया। मगर इसके लिए 76 संघर्ष हुए हैं। जो हुतात्मा कार सेवक और बलिदानी राम भक्त, 4 लाख बलिदानी राम भक्त, उनका स्वप्न अभी साकार होने वाला है उस जीवित काल में हम सब में, इसलिए हम सब भाग्यशाली हैं, भाग्यशाली। और राम और श्री राम भारत का आत्मा है। राम के बिना भारत के लिए कोई अर्थ नहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम, ए मैन हु हैज रीच्ड द हाईएस्ट लिमिट्स ऑफ ह्यूमन परफेक्शन। एक मनुष्यता का, उत्तमता का उत्तुंग रूप है श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। राम ऐतिहासिक पुरुष है, काल्पनिक व्यक्ति नहीं है राम, क्योंकि रामायण ये भारत का इतिहास है, इतिहास काव्य रामायण। रामायण महाभारत दुनिया के महाकाव्य है। एक सूर्यवंश का इतिहास है, एक चंद्रवंश का इतिहास है। रामायण सूर्यवंश का इतिहास है और महाभारत चंद्रवंश का इतिहास है। रामा he was the 67th king of रघुवंश, सूर्यवंश, डायनेस्टी। विष्णुपुत्र, ब्रह्म, मरीचि ब्रह्म, कश्यप, विवस्वान, कुक्षि, इक्ष्वाकु, कुक्षि, विकुक्षि, बाण, अनरण्य, प्रथ, त्रिशंक, मांधाता, सुसंधि, ध्रुवसंधि, भरत, असिति, सगर, अंशुमंत, दिलीप, भगीरथ, ककुत्स्थ, रघु, पुरुषादक, कल्माशपाद, शंकण, सुदर्शन, अग्निपर्ण, शीघ्रग, मरु, प्रशुशुक, अंबरीश, नंश, ययाति, नाभाग, अज, दशरथ, राम। रामा के बाद भी 60+ किंग्स बने। राम इतिहास पुरुष है। रामायण का प्रभाव भारत के ऊपर इतना गहरा है। देखिए, रामायण का काल में प्रिंटिंग नहीं था, रामायण किसी ने नहीं लिखा।
महाभारत को गणपति ने लिखा, विनायक ने लिखा, मगर रामायण के काल में लिपि नहीं था। रामायण में 20,000 श्लोक है, महाभारत में 1,00,000 श्लोक है। महाभारत देखिए कितने साल पहले रामायण की रचना हुई, कोई नहीं जानते, इतिहास में नहीं जानता है। मगर देखिए आज भारत के किसी छोटा गांव में जाइए, भारत में 6 लाख से ज्यादा गांव है, गांव में जाइए, देखिए राम, कृष्ण, शिव, गणप, हनुमान, सीता, पार्वती के नाम ना कोई आपको मिलते हैं, कोई ना कोई व्यक्ति मिलते हैं। इतने हजारों साल के बाद भी भारत के हर एक गांव में राम के नाम के व्यक्ति, कृष्ण के नाम के व्यक्ति, गणपति के नाम के व्यक्ति मिलते हैं ना। कितना प्रभाव, कितना गहरा है देखिए। एक समय पर ऐसा था कि दक्षिण भारत में NT रामाराव आंध्र के मुख्यमंत्री थे, MG रामचंद्रन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे, कर्नाटक में रामकृष्ण हेगड़े मुख्यमंत्री थे, सब राम के नाम पर ही थे। ऐसे इतना गहरा प्रभाव हमारे जनजीवन के ऊपर, भारत के जनजीवन के ऊपर राम का है, रामायण का है। मगर दुर्दैववशात 1528 में अयोध्या में जन्मस्थान पर जो मंदिर था, तो अफगान से आए हुए मीरबाकी बाबर के सेनापति ने उस मंदिर को उद्ध्वस्त किया, उद्ध्वंस किया, तोड़ा और उसके ऊपर एक मस्जिद का निर्माण किया। So in this 492 years में, अतीत के 492 years में 76 संघर्ष हुए। कितने बार संघर्ष हुए। एक जमीन का मामला इतना ही नहीं है, ये श्रद्धा आस्था का मामला है। इसलिए 4 लाख राम भक्तों का बलिदान हुआ संघर्ष में। उसके बाद 1990 और 1992 में जो आंदोलन हुआ राम जन्म मुक्ति के लिए, मुझे लगता है सारे दुनिया में किसी देश में इतना बड़ा आंदोलन कभी नहीं हुआ है। इतना बड़ा आंदोलन, 6 लाख कार सेवक भारत के कोने कोने से अयोध्या पर पहुंचे। इतना निर्बंध, इतना सेना के व्यक्ति, पुलिस व्यक्ति सब होने के बाद भी अंदर घुसे। उधर का जो अपमान का संकेत का एक ढांचा था उसको पूरा उद्ध्वस्त किया और एक छोटा तात्कालिक टारपालिन टेंट का राम मंदिर उधर निर्माण किया गया। 1 दिसंबर 6, 1992, हम सब जानते हैं। बहुत एक रोचक इतिहास है। उसमें भी कुछ हमारे कार सेवक मारे गए, हुतात्मा हो गए। इसलिए अगस्त 5 को जो भूमि पूजन कार्यक्रम हुआ, हमने देखा भारत के कोने कोने से संत आए थे। ये कोरोना के कारण इस संकट के समय पर भी कुछ निर्बंध था, मगर देश के कोने कोने से कुछ चयनित सिलेक्टेड इनवाइटेड स्वामी जी आए थे। उनके सम्मुख भारत के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भूमि पूजन का वो धार्मिक विधि विधान पूरा करके मंदिर निर्माण के लिए एक चालन दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसला में स्पष्ट बताया था कि मंदिर कंस्ट्रक्शन के लिए यू मस्ट कॉन्स्टिट्यूट ए ट्रस्ट विद इन 3 months। इसलिए फरवरी में 1920 फरवरी में एक ट्रस्ट का गठन हुआ। 15 मेंबर्स ट्रस्ट में। उस ट्रस्ट का अध्यक्ष है पूजनीय महंत नृत्य गोपाल दास जी। उस ट्रस्ट का सेक्रेटरी है हमारे विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चंपत राय और पूजनीय आचार्य गोविंद गिरिदेव पिछले सप्ताह भाग्यनगर में आए थे। उस ट्रस्ट का कोषाध्यक्ष है। हम सब ने नाम सुना होगा मिस्टर केशव पराशरन, सीनियर एडवोकेट। वो अपने इतना बुढ़ापा में भी वो सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर उन्होंने अपने मुकदमा चलाई, उन्होंने वादा की हमारे पक्ष में। चीफ जस्टिस ने उनको बताया, उनका आई देखकर बताया आप बैठकर आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। उन्होंने बताया राम का काम में कोई विश्राम लेने का मौका नहीं, राम का काम है इसलिए विश्राम की जरूरत नहीं, आराम की जरूरत नहीं, मैं खड़े होकर ही वादा करूंगा इसे बताया। तो उस ट्रस्ट में अभी 15 लोग हैं। दक्षिण भारत से उडुपी के पूज्य मठाधीश पूज्य पेजावर स्वामी जी वो एक ट्रस्टी है। सारे भारत के 4 कोने से 4 मठाधीश उसके ट्रस्टी हैं और अयोध्या नगर के 2 गणमान्य लोग उस ट्रस्टी है और एक अनुसूचित जाति के सामाजिक कार्यकर्ता सो कामेश्वर चौपाल, बिहार के अभी MP है वो। 1989 नवंबर 9 को जब शिलान्यास हुआ था उस समय उसके हाथ से करकमलों से वो शिलान्यास हुआ था, वो उसका मेंबर भी है। और पदनिमित्त बाई वर्च्यू ऑफ पोजीशन केंद्र सरकार से एक रेवेन्यू, केंद्र सरकार से एक IAS ऑफिसर और राज्य सरकार से अयोध्या के स्टेट गवर्नमेंट से IAS ऑफिसर उसका मेंबर भी है। और अयोध्या का जिला मैजिस्ट्रेट वो भी उसका मेंबर है। पदनिमित्त दे आर मेंबर्स बट दे डोंट हैव एनी वोटिंग राइट्स।
और उसमें यह भी लिखा है कि ट्रस्ट में दे मस्ट बी प्रैक्टिसिंग हिंदू, ऐसे उसमें लिखा है। ऐसे ट्रस्ट का गठन हुआ और ट्रस्ट में मंदिर निर्माण करने के लिए मीटिंग्स बहुत चली और उन्होंने फैसला किया कि अभी मंदिर के लिए निर्माण के लिए 4 टोटल प्लान में 4 भाग है। प्लान ए 2.77 एकड़ प्रदेश डिस्प्यूटेड लैंड था पहले, उसमें भव्य मंदिर निर्माण प्लान ए। प्लान बी में 67.7 एकड़ प्रदेश है, उस प्रदेश में यात्री निवास, धर्मशाला, भोजनालय, मुख्य ऑफिस, थीम पार्क, एक म्यूजियम, पार्किंग स्पेस, वेद पाठशाला, यज्ञशाला और वीआईपी गेस्ट हाउस, बाकी सब ये मिलाकर प्लान बी 67.7 एकड़ प्रदेश में। प्लान सी में अयोध्या का इंफ्रास्ट्रक्चर, ये मंदिर निर्माण होने के बाद लाखों यात्री हर दिन आएंगे, इसलिए अयोध्या का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे रहना, अयोध्या का रोड्स, अयोध्या में बिजली, अयोध्या का पानी, बाकी सब, दैट्स प्लान सी। और प्लान डी में अयोध्या में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना है और उस एयरपोर्ट से मंदिर के आउटर प्रीमिसेस तक एक फ्लाईओवर ये बनाना है और उसके साथ साथ ही जो अयोध्या का रेलवे स्टेशन है उसको अपग्रेड करना है, दैट इज प्लान डी। ऐसे प्लान ए में 2.77 एकड़ प्रदेश में मंदिर निर्माण, प्लान बी में यात्री निवास, धर्मशाला, वेद पाठशाला आदि आदि, प्लान सी में अयोध्या का इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लान डी में एयरपोर्ट एंड रेलवे स्टेशन। सो ट्रस्ट ने निश्चय किया कि प्लान सी ये स्टेट गवर्नमेंट करेगा, अयोध्या का इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, और प्लान डी सेंट्रल गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्लान ए मंदिर निर्माण, प्लान बी उस परिसर में बाकी सब। इसके लिए 1 पैसा भी सरकार का हमको नहीं चाहिए, 1 पैसा भी सरकार को नहीं देना है, हम करेंगे। 1 पैसा भी सरकार का नहीं चाहिए, क्योंकि मंदिर निर्माण करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रस्ट का है। मगर मंदिर किसका है? ट्रस्ट का नहीं है। मंदिर सारे भारत के हिंदू समाज का मंदिर है, इसलिए भारत के हर एक हिंदू परिवार का सहयोग इसमें रहना है। इसलिए वो जिम्मेदारी हमारी, कैसे निधि संग्रह करना है हमारी जिम्मेदारी। सरकार की पैसा हमें नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, ऐसे इन्होंने स्पष्ट रूप से बताया। और ये निधि संग्रह के लिए उन्होंने एक कालावधि भी निश्चय किया। मकर संक्रांति से जनवरी 15 से माघ मास के पूर्णिमा तक, दैट इज फरवरी 27, ये 44 डेज कालावधि में हर एक प्रांत में 20-20 दिन इसके लिए निधि संग्रह करेंगे। मगर इस अभियान, इस उद्यम का नाम निधि संग्रह ऐसा नहीं दिया, श्री राम मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान ऐसे इसको रखा है, निधि संग्रह नहीं है। हम जाकर आग्रह पूर्वक निधि संग्रह नहीं करेंगे, मगर हम घर घर जाएंगे, घर में जो वो श्रद्धा भक्ति से देते हैं, जो समर्पण करते हैं, उस निधि को हम लेंगे, स्वीकार करेंगे। इसलिए निधि संग्रह अभियान नहीं है, ये निधि समर्पण अभियान है। भारत में 20 करोड़ हिंदू परिवार है, भारत में 20 करोड़ हिंदू परिवार। एक अनुमान है कि हमारे कार्यकर्ता का ताकत कितना है, एक 12 करोड़ हिंदू परिवार तक हम जा सकते हैं, 12 करोड़ हिंदू परिवार तक। देश में 6 लाख से ज़्यादा गांव है, तो हमें लगता है कि हम 5 लाख तक गांव में हम जा सकते हैं और 12 करोड़ हिंदू परिवार में घर घर जाकर हम इसके लिए निधि समर्पण जो करेंगे उसको हम स्वीकार करेंगे। अभी तो हमारे अभियान प्रारंभ हुआ है, कितना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। सामान्य घर से भी हम उसको कैसे, मुझे भी ऐसा लगता है कि अनुभव ऐसा ही, बेंगलुरु में हमारा कार्यकर्ता घर घर गए, कुछ स्लम में उधर के लोगों ने हमारे कार्यकर्ता, सामान्य कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं ना, बैच करके जा रहे हैं, उनका पैर धोकर अंदर बुलाए गए, पैर धोकर और समर्पण है। हमने समझा 10 रुपया 100 रुपये देंगे, 500 रुपया 1000 रुपये दे रहे। वैसे राजा राजेश्वर नगर बेंगलुरु में है, उधर हमारे कार्यकर्ता है, उस घर के सामने फुटपाथ में ये मोची फैमिली है, मोची हम जानते हैं, मोची वो चर्मकार, चप्पल करने वाले, वो उनका घर भी उधर ही, एक सामान्य टेंट लगाकर 20 साल से वो परिवार उधर ही, उनके बच्चे भी उधर ही पैदा होते, केवल चप्पल ये करने का काम है उनका। हमारे कार्यकर्ता भजन गाते गाते बैचों में रास्ता के 2 साइड पे घर पर जाकर निधि संग्रह के लिए जा रहे थे। उन्होंने बुलाकर पति ने 1000 रुपये, पत्नी ने भी 1000 रुपये दिए, अलग अलग प्रत्येक दिया। देखिए सामान्य परिवार थे। उधर भीख मांगने वाले बूढ़ी माँ, उन्होंने पूछा क्या चल रहा है,
ये सब हमारे कार्यकर्ता व्हाइट ड्रेस और केसरी शाल पहनकर जा रहे हैं। पूछा क्या करें मंदिर के लिए, अयोध्या के मंदिर के लिए। तब उन्होंने बताया कि 92 में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ उसका था, ऐसा पूछा उन्होंने, उसको याद नहीं। उन्होंने उस समय तक उस दिन में जितना भीख मांगकर कमाई की थी 53 रुपीज़, उन्होंने पूरा उसको दिया उसको। तो मेरा भी एक सवाल देश में रहेगा ऐसे सारे देश में सामान्य लोग से लेकर बड़े बड़े धनिक लोग भी इतना दे रहे हैं, एक ओवरवेलमिंग रेस्पॉन्स। मुझे लगता है इसका टारगेट कितना है मुझे पता नहीं, तो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने अनाउंस किया था फर्स्ट में 1100 करोड़ शायद इसका लक्ष्य है, उन्होंने बताया था। इसके लिए मुझे लगता है अभी इतना रेस्पॉन्स आ रहा है, इसी समर्पण से मुझे लगता है केवल अयोध्या नहीं मथुरा काशी भी हम निर्माण कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। इतना रेस्पॉन्स हमें मिला, इतना रेस्पॉन्स तो लोग अपने आप आकर दे रहे हैं। मैं आरएसएस का कार्यकर्ता हूँ, मैं 35 साल से मैं प्रचारक हूँ। ऐसे कई निधि संग्रह अभियान संघ ने चला है, मैं उसमें भाग लिया हूँ। मैंने कभी भी ऐसा एक अभूतपूर्व, ऐसा मैंने ऐतिहासिक रेस्पॉन्स मैंने कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा। हमारे विरोधी भी दे, तो राजनीतिक विरोधी, वैचारिक विरोधी लोग भी आकर दे रहे। हमने शायद पत्रिका में या न्यूज़ चैनल में देखे होंगे हमने सब। तो दिग्विजय सिंह ने 1,11,111 ऐसे दिग्विजय सिंह ने दिया। वो बचपन में शाखा गए हैं दिग्विजय सिंह, वैसे उनके परिवार संघ का परिवार है, मगर अभी कांग्रेस में, इसलिए देने के लिए मन चाहता है, मगर दिया है। उसके साथ एक कंडीशन भी उन्होंने बताया। प्राइम मिनिस्टर को एक 2 पेजेस का एक पत्र लिखा है उन्होंने। पत्र में उन्होंने बताया कि इसके पहले 1992 में विश्व हिंदू परिषद ने एक घर से 1.25 रुपया कलेक्ट की थी। उस समय एक ईट भेजना शिला पूजन के समय हर गांव से, और हर एक घर से 1.25 रुपये देना, ऐसे उस समय विश्व हिंदू परिषद ने ऐसे निधि संग्रह अभियान करके कलेक्ट किया था, और उसका हिसाब देना है, यही कंडीशन, ऐसे उनका कंडीशन। मगर देने के लिए मन चाहता है, मगर कांग्रेस का व्यक्ति है ना, सीधा कैसे देना, इसलिए कंडीशन डालते हैं। ऐसे हमारा वैचारिक विरोध है। मैं कर्नाटक में 4-5 दिन था अभियान के समय, कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े नेता, मगर बहिरंग प्रकट करने के लिए वो चाहते नहीं, घर में बुलाकर लाखों रुपये दिए उन्होंने। तो हमने निश्चय किया कि इसके लिए 10 रुपये का एक कूपन, हर एक कूपन हर एक घर में जाकर, कोई सामान्य घर में भी हम जाकर 10 रुपया ले सकते हैं, ऐसे विश्वास लेकर हमने 10 रुपये के कूपन, वैसे 100 रुपीज़ का कूपन और 1000 रुपीज़ का कूपन, और इससे ज़्यादा 2000 से ज़्यादा जो देते हैं उनसे चेक से ही लेना है। शायद मुझे लगता है ऐसी सूचना है ना इधर, 20,000 से ज़्यादा, 20,000 तक हम कैश दे सकते हैं, उसके बाद हम पूरा हमको चेक में ही देना पड़ेगा, केवल व्हाइट मनी से। बहुत बड़े बड़े धनिक लोग जो इंडस्ट्रीज चलाने वाले लोग आकर बताया, हमारे देश के प्रमुख इंडस्ट्रियलिस्ट, मैं उनका नाम इधर नहीं बताता हूँ, आकर हमारे ट्रस्ट के पास आकर पूछा पूरा मंदिर वहीं निर्माण करके दें, हमारे ट्रस्ट के, हमारे इंडस्ट्री की ओर से हम करेंगे, 1500 करोड़ हम देंगे, ऐसा उन्होंने बताया। मंदिर हम ही निर्माण करेंगे, मगर हमारे ट्रस्ट वालों ने उसको इनकार किया, ऐसा नहीं होगा, ये मंदिर पूरे हिंदू समाज का है। नहीं तो इधर भी एक बिरला टेम्पल है ना, भगवान कौन सा है किसी को मालूम नहीं, डोनर के नाम पर मंदिर है, बिरला टेम्पल है ना। सामान्य राम टेम्पल, अंदर भगवान राम है, मीनाक्षी टेम्पल, अंदर भगवान मीनाक्षी है, मगर बिरला टेम्पल के अंदर कौन है, भगवान बिरला नहीं है। क्यों बिरला का नाम, उन्होंने पैसा दिया। और इतना भी नहीं है, मंदिर में किसी कोने पर भी, अभी निर्माण होने वाले मंदिर में किसी का नाम भी नहीं लगाया जाएगा, किसी का नाम, कितने करोड़ रुपए देने पर भी आपका नाम उधर नहीं रहेगा, केवल ओनली राम नाम, ऐसे निश्चय किया है। ऐसे हमारे दक्षिण भारत के प्रमुख व्यक्ति हमारे साथ वैचारिक हमारे समर्थक है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, बहुत धनिक है, उन्होंने बताया मेरे पिताजी के नाम पर मैं 100 करोड़ दूंगा, एक उसमें एक मंजिल मेरे पिताजी के नाम पर मंदिर। तो मंदिर में 3 मंजिल है, 3 स्टोरी सर्विस, एक मंजिल मेरे पिताजी के नाम पर। हमने स्पष्ट रूप से उनको बताया किसी के नाम पर नहीं होता है, आप जितना चाहते हैं उतना दीजिए, हमको 100 करोड़ नहीं चाहिए, आप श्रद्धा भक्ति से विदाउट कंडीशन आप जितना दे सकते हैं उतना दीजिए। हम किसको आग्रह नहीं कर रहे हैं, इतना ही देना आग्रह नहीं कर रहे हैं,
मगर हम ये आग्रह कर रहे हैं कि अपने जीवित काल के ये सर्वश्रेष्ठ समर्पण इस कॉज के लिए दीजिए, क्योंकि एक ऐतिहासिक मंदिर है, एक ऐतिहासिक मंदिर हमारे जीवित काल में निर्माण हो रहा है, इसलिए हम भाग्यशाली हैं। ऐसे बताकर हम सबको हम जा रहे हैं। अभी अभियान इधर भी चल रहा है और हम जानते हैं कि भारत के प्रतिष्ठित कंस्ट्रक्शन कंपनी L&T इसका निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट L&T को दिया है और L&T भी सहर्ष से उसको स्वीकार किया और L&T ने बताया कि हम भी हमारा एक बहुत बड़ा हिस्सा हम आर्थिक हिस्सा हम भी देंगे, ऐसे उन्होंने बताया है। और उन्होंने ये भी बताया कि विदिन 3 years वी विल कंप्लीट द टेम्पल। 2023 श्रावण मास के पहले, इस बार अगस्त 5 को भूमि पूजन हुआ, हम सब जानते हैं। सो 2023 श्रावण मास के पहले, दैट्स इन अगस्त, श्रावण मास अगस्त में आता है, उसके पहले हम मंदिर का निर्माण पूरा करेंगे। और टाटा कंसल्टेंसी इसके लिए फ्री कंसल्टेशन देने के लिए वो भी तैयार है। ऐसे भी मंदिर निर्माण का काम अभी प्रारंभ हुआ है। इसलिए मैं इधर सब जो आए हैं प्रतिष्ठित गणमान्य लोग जो आए हैं, माताएं, भगिनी और सज्जन बंधुओं के सामने मैं समक्ष में विनम्र विनंती कर रहा हूँ कि आप भी हमारे अपने जीवित काल के सर्वश्रेष्ठ समर्पण इस कॉज के लिए दीजिए। ऐसे आप सबसे विनम्र विनंती करके मेरा वाणी को मैं समाप्त करूँगा। इसके बारे में, मंदिर निर्माण के बारे में कुछ पूछना है तो 5-10 मिनट पूछिए, उसके बाद कोई आकर इधर अपना समर्पण के बारे में कुछ घोषणा करने वाले है तो फिर ये बाकी लोगों को प्रेरणा देने के लिए कर सकते हैं। करना ही ऐसा मैं नहीं बता रहा हूँ, कोई कर सकते इधर, आप वो भी कर सकते हैं। उसके पहले 5-10 मिनट इस मंदिर निर्माण के बारे में कुछ पूछना है तो कृपया पूछिए। मुझे जितना जानकारी है इसके आधार पर मैं उत्तर देने के लिए मैं कोशिश करूँगा। 4-5 मिनट समय है, इसलिए पूछ सकते कोई और एक। मेरा नाम सत्या है। बताइए। अभी अपना देश में पूरे मंदिर पूरा गवर्नमेंट के कंट्रोल में है ना अभी। तो फ्यूचर में राम मंदिर होने के बाद फ्यूचर में गवर्नमेंट लेने का कुछ सोचना है ना, तो पूरा ट्रस्टी मेंटेन करेगा। ट्रस्टी मेंटेन करेगा, गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं। अभी भी ट्रस्ट में ऐसा लिखा है कि गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट से जो एक IAS अधिकारी रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट से एक IAS अधिकारी रहेगा, अयोध्या का जिला मैजिस्ट्रेट रहेंगे, किसी को भी वोटिंग राइट्स नहीं है उसमें। धन्यवाद। वही जय श्री राम। माय फ्रेंड दिस साइड श्रीनिवास रेड्डी, चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर आर्टमस ग्रुप ऑफ कंपनीज, 5,01,16। నమస్తే, నా పేరు రామకృష్ణ ప్రసాదరావు, హైదరాబాద్లోని గోవాలో ఉంటాను. మా కుటుంబం తరఫున 20 lakhs సామాన్లు సమర్పించుకుంటున్నాం. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు ఆదిత్య అండి. నేను కోకాపేట నుంచి వచ్చినాను. ఈరోజు ఉదయం నేను మా అమ్మగారితో చెప్పానన్నమాట, నేను ఒక 1,00,000 రూపాయలు విరాళం ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను అని మా అమ్మగారితో చెప్తే, మా అమ్మ అండి నేను కూడా 1,00,000 ఇస్తాను, ఇద్దరిది కలిసి ఇవ్వండి అని చెప్పింది. అయితే మేమిద్దరం వెళ్ళి మళ్ళీ మా నాన్నగారితో చెప్పాను. మా నాన్నగారు కూడా 1,00,000 రాసిచ్చారు. మొత్తం ముగ్గురం కలిసి 3,01,16 ఇస్తున్నాం. నేను గోవర్ధన్ గౌడ్, లింగంపల్లిలో ఉంటాను. నేను రామ మందిర నిర్మాణానికి 1,00,000 రూపాయలు సమర్పణ చేశాను. जय श्री राम। आई एम डॉक्टर रश्मि लावण्या। बहुत भाग्यशाली है कि मैं भी जीवित हूँ और भारत में हूँ और राम मंदिर के निर्माण में छोटा सा हमारा कंट्रीब्यूशन है। मैं एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हूँ, छोटा सा इंस्टीट्यूट रन करते हैं, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज एंड एंडोक्रिनोलॉजी, क्योंकि हम ट्रेनिंग तो अमेरिका में हुए लेकिन रह रहे इंडिया में, तो नाम एटलीस्ट अमेरिका का लगा लिया, लेकिन सेवा तो अब इंडियन पेशेंट्स के लिए हो रहा है। तो राम जी के लिए 1,06 रुपीज़ हमारे